So we are live now. नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ I have a very special guest with me in my show, the handsome and dashing Loyan Dr. Raju Manwani ji. You are the international president of the Vishwa Sindhi Seva Sangam. You have been the chairman of the Lions Coordination Committee of India. You were awarded the Ambassador of Goodwill Award, which is the highest award by Lions Club International. You are the chief promoter of SOL Lions Gold Awards for last 25 years. You have represented Rajasthan in National Kabaddi in the year 1975 as a captain. And you are vice president of Martial Arts Association of Maharashtra. You donated blood for record 163 times till date. You are also on the advisory and lifetime membership of Club Millennium Juhu, the Willows by Taj Udaipur, Juhu Gymkhana Club, Maharashtra Rifle Association, Goregaon Sports Club, Andheri Recreation Club, ISKCON. I'm only mentioning few names, otherwise it's a very long introduction. One personal question to you. How do you manage life? You are omnipresent, you are everywhere in every association almost. Sir, we have 24 hours in the life and 24 hours managing. I think so 8 घंटे सोने के लिए काफी है, 8 घंटे काम करने के लिए काफी है, 4 घंटे बीवी बच्चों के लिए काफी है, बाकी 4 घंटे भी हमें मिलते हैं. If you desire to do something for others, I think so is enough time we have. समाज सेवा तो आपके अंदर कूट के भरी है, वो तो आपका प्रोफाइल बता रहा है. सर कुछ आप बताना चाहेंगे अपने बारे में जो मैंने छोड़ दिया हो, कोई ऐसी खास बात? नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं नितिन भैया. I think so you're doing the great job. Taking the people on the different platform on such time where the people are really need to listen the people, and maybe we try to learn something from them or maybe they try to learn something from us. But this is you're doing the great job. My compliments to you. Thank you. Okay, so shall we start the interview? So please go ahead, sir. Okay, so my first question to you is the impact of COVID-19 on India, world and Sindhi community. Life तो चेंज हो ही गई है. मतलब कभी इस उम्र तक ये नहीं सोचा था कि 2, 2.5, 3 महीने तक घर में बैठे रहेंगे. वो जो हम लोग मिस करने लगे थे कि घर में फैमिली के साथ नहीं बैठते हैं, साथ में खाते नहीं है, टाइम पे सोते नहीं है, टाइम पे उठते नहीं है. But I think so maybe whatever the reasons are, we have learned a lot that how we have to take care of the cleanness, how to take care of the hygiene, how to take care of your food, your health, your business. No doubt is going to affect a lot. You and me cannot do it, Nitin, by anything. I mean, the world is closed. World is right now. Whatever the reasons are. But believe me, we have learned a lot from this. कि कम से कम कोरोना के बाद हम इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर ध्यान रखें, चाहे वो नेचर का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे बिजनेस का हो, एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी सर. अगर अब हम डिसिप्लिन नहीं बनेंगे तो ये एक अच्छा लेसन नेचर ने हमें दिया है कि एक छोटे से वायरस ने, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो या रूस हो, सबको चुप करा दिया है सर. एंड दिस इज नाउ टाइम वी मस्ट लर्न समथिंग. गो अहेड विद लाइक द पीपल. लोग बोल के थक गए कि हमें ये अच्छा काम करना है, स्वच्छ भारत रखना है, क्लीननेस रखनी है, नेचर को मेंटेन करना है. नहीं करते थे, अब दिन में 10 बार हाथ धोना पड़ता है. डर, इस डर के मारे, बिना डर के मारे भी तो हम ये काम कर सकते थे ना. लेकिन अब कम से कम कोरोना के बाद इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आई थिंक सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर वी ऑल, लाइक मे बी वी इंडियंस और वी सिंधीज. आई थिंक वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट. Dada, you and me can afford all this, we can afford the lockdown thanks to the bank balance, little bit, whatever we have the bank balance. But what about the labor, the workers? आप देख रहे होंगे कैसे पैदल अपने घरों में जा रहे हैं 500-500 किलोमीटर. उनके लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक मुसीबत बन के नहीं आया है? Fact है. Unfortunately, government is trying to do a lot of things for them, but I don't know they are able to reach to them or not. But person like you, me and NGOs, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कितनी भी एसोसिएशंस हैं, वो जहां तक पहुंच पा रही हैं वो लोग पहुंच रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि अभी करीब 27 देशों में है. एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन भी है. लेट मी आस्क द क्वेश्चन टू यू कि आपकी जो संस्था है, आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं विश्व सिंधी सेवा संगम, जिसके पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ऑफिसेज हैं, ऑफिस बियरर्स हैं.
मैं जी दिल्ली का तो काम देख रहा हूँ, वो सारिका वतवानी जी के अंडर जो हो रहा है। जी तो जी। आप अपने अपनी संस्था के बारे में, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, भी बता दीजिए, और आप अपने निजी स्तर पे भी क्या कर रहे हैं वो भी बता दीजिए, और आपकी जो छोटी छोटी जो ब्रांचेस हर शहर में है वो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए, ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं ओवरऑल। हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है वीएसएस वर्ल्ड, जी वीएसएस ऐप। अगर आप वो डाउनलोड करेंगे, आपको डेली टू डेली एक एक मिनट की रिपोर्ट मिलेगी। मतलब ओके। दिन में कम से कम वो चाहे दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, मेघालय से लेकर के गुजरात तक, और हमारे सेंट्रल इंडिया के अंदर जितना विश्व सिंधी सेवा संगम की हर ब्रांच, चाहे वो वुमेन विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो हमारी मैन विंग है, टच वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। मतलब कि जो रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स और वीडियोस आ रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपने लेवल तक जहां तक वो पहुंच पाते हैं, जहां तक उनको अलाउड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम ही नहीं, मैं बाकी के एसोसिएशन का भी देख रहा हूँ। लेकिन हम लोगों का ये रहेगा कि हम लोग जितना अपनी तरफ से हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, चाहे वो किसी को ब्लड देना हो, चाहे किसी को खाना देना हो, किसी को राशन देना हो, किसी को कहीं सही जगह पहुंचाना हो, उसके लिए जो उसको गाइडेंस चाहिए, जो कि उनको नहीं है कि कैसे अप्लाई करना, परमिशन वगैरह, वो हर तरीके के लिए वीएसएस वाले तो पूरी मदद कर रहे हैं सर, और हम मदद करते रहेंगे। हमारे जो पूरे 24 स्टेट के अंदर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, दिल्ली के अंदर आप देख ही रहे हैं, जो भरत जी वाटवानी, वाटवानी, मकरानी साहब वगैरह जो सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जितने आपके दिल्ली की इतनी सिंधी एसोसिएशन है, मैं तो आप लोगों के वीडियो प्रोग्राम देख करके इम्प्रेस हूँ कि आप लोग वो पाकिस्तान से आए हो हमारे सिंधी भाई लोगों के लिए भी जो आप लोग कर रहे हो। सर, माई सैल्यूट टू यू द वे यू आर डूइंग थैंक यू सो मच, थैंक यू इट। सो मच, योर वर्ड मीन अ लॉट टू मी। जी सर। अच्छा, जरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र सरकार के लिए मैंने इसीलिए बोला कि इस समय इंडिया में महाराष्ट्र इज ऑन टॉप ऑफ द चार्ट, स्पेशली मुंबई एंड पुणे। तो कुछ सजेशन, कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई कि इतना क्यों फैल गया महाराष्ट्र में कोरोना, कुछ आप कहना चाहेंगे सरकार को? सर, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन जो एक पर्सनल टच होता है, जैसे प्रधानमंत्री साहब हमसे बात करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब हमसे बात करते हैं, बात सुनने के बाद हम उसको कितना फॉलो करते हैं, वो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो सफर करेंगे। आज हमें मालूम है कि बाहर से चीजें लेके आने के लिए, बाहर जाने के लिए, अगर कोई एक आदमी भी संक्रमित होता है तो वो कम से कम 60 आदमी को कर देता है। 60 आदमी पता नहीं कितने आदमियों को करेंगे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा हर जगह तो चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री पहुंच नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमारे थ्रू जाएंगे। वो हमें कन्वे कर रहे हैं, कम से कम हम उनको फॉलो तो करें, उनकी बातों को सुने तो सही। फिर भी हम नीचे चले जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को रोज वीडियो देख रहा हूं मैं, किसी को लाठी पढ़ रहे हैं, डंडियां पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है? आप आज भी वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं, जबकि आपको इतना वार्निंग दिया जाता है रेड जोन के बावजूद। हम रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। और मैंने जैसे बताया आपको, जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, आपको सफर होना पड़ेगा। रोज हमारा कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त हमारे बीच में से चला जाता है। इट्स नॉट गुड सर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, सरकारों में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो सिर्फ लोगों में जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर, उनको मेरे हिसाब से आई फील कि थोड़ी हम्बलनेस, थोड़ा काइंडनेस एंड रीचेबल एनजीओ के थ्रू। अब वो बेचारे हमारे जो लोकल एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर होंगे, वो किस लेवल तक जाएंगे? वो अपने किसी न किसी अधिकारी के लेवल तक जाएंगे। बाकी के लोग भी उनसे, अगर जो आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना ओपन है कि आपको मैसेज मिलता है, यू फॉलो इट प्रॉपर्ली। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई बोले तो ही आपको करना है। बिना बोले करिए ना सर, उसमें ज्यादा मजा आता है। आपको नहीं लगता रिसोर्सेज की कुछ कमी है, टेस्टिंग की कमी है? अभी टेस्टिंग होगी तो और केसेस बाहर आएंगे और स्थिति खराब होगी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ में जितनी कैपेबिलिटी है, बेचारे वो लोग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं। अब उनकी कैपेसिटी उन्हें ज्यादा मालूम है, लेकिन अगर हम उन्हें ब्लेम करें बिना समझे हुए, तो मेरे अंदर से दे आर द राइट पीपल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ कि हमारी कैपेसिटी क्या है। उस हिसाब से वो लोग अगर सही जगह पे पहुंच के सही लोगों का बरोबर टेस्टिंग वगैरह सब चालू है, तो सर कंट्रोल हो सकता है। कम से कम जो आज इटली, अमेरिका और यूरोप में देखने के बाद इंडिया को देखते हैं, तो हमें लगता है फिर भी इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा अच्छी है सर, फिर भी बहुत अच्छी ओबीडियंट है और वो कहना मान रही है, और गवर्नमेंट उनके लिए बहुत अच्छा कर भी रही है। अच्छा, आपकी एक साइड ये भी है कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो कल जो प्रधानमंत्री ने ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, क्या लगता है आपको कुछ फायदा होगा व्यापारी को या मध्यम वर्ग समाज को? डिटेल नहीं आ जाता है, लेकिन जैसा उन्होंने एक बात और कही कि
जहां है तो जहान है। आज हमें अपनी पहले जान के बारे में सोचना है, घर वालों और अपने जितने भी रिश्तेदारों की जान के बारे में सोचना है। ये इकोनॉमी तो लाइफ में मैंने 3-4 बार देखी है सर, ऊपर जाते हुए, ऊपर नीचे आते हुए। मेरा अंदाज अगर एक बार हम 1-2-3 महीने के अंदर बाहर आ जाते हैं, ये वापस मेहनत करके, और हम तो कला सब सिंधी हैं, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्या बन के आए थे और आज क्या बन गए हैं, हम सब जानते हैं सर। हम सब कैपेबल हैं और कोई भूखा नहीं मरेगा सर। स्पेशली सिंधीज तो कभी भूखे नहीं मरेंगे सर, वो तो करेंगे, लेकिन ये बिजनेस हम कर लेंगे सर। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि सिंधी पुरुषार्थी हैं, इसलिए सिंधियों को तो फर्क नहीं पड़ेगा कम से कम, और भी दुनिया जो है इससे उबर जाएगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल जाएगी सर। मेहनत करने वालों के लिए कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं होती है सर। अच्छा, just because you are an iconic Sindhi, I want you to give a message to the Sindhis worldwide. प्यार मोहब्बत से अगर हेलो, You can say in Sindhi also, I don't mind. You can पॉजिटिव talk in रहो, Sindhi. खुश रहो, हिक ॿिए खे खुश रखो, घर जो माहौल सुठो ठाहे रखो, सुठो खाओ पीओ। जेतिरो एटमोस्फियर तव्हां पॉजिटिव करे रखंदा, खाइण में, पीअण में, मस्ती करण में, ॻाल्हाइण में, ॿारनि सां, पंहिंजे सीनियर सिटीजन सां, पंहिंजे पेरेंट्स सां, तव्हांखे मौक़ो मिलियो अथव कि हिन वक़्तु तव्हां पंहिंजे उन भॻवाननि खे पूरो पूजा करे तव्हां ख़ुशि करे सघो था जेके तव्हांजे घर में आहिनि, तव्हांजा माउ पीउ। असां पंहिंजी ज़िंदगी में भॻवान ॾिठा कान्हनि के, भॻवान जेके ॾिठा आहिनि असांजे घर में ॾिठा आहिनि माउ पीउ जे रूप में। तव्हांखे मौक़ो मिलियो अथव, प्लीज़ जेतिरियूं दुआऊं वठो अथव दुआऊं वठो। जय झूलेलाल। Okay. Dada, your anticipation, when will things improve? When will life get to normal? मूंखे लॻे नथो कि लाइफ हाणे ओतिरी नॉर्मल थी वेंदी जेतिरी हुई। मतलब हाणे तव्हां भली 6 महीना निकिरे या साल निकिरे, तव्हांखे घणनि ॻाल्हियुनि जो हाणे ध्यानु रखिणो पवंदव। शायदि उहो जेका लार्ज गैदरिंग, वॾियूं वॾियूं शादियूं, पार्टियूं, घुमण फिरण, थी थो सघे उन्हनि जे लाइ तव्हांखे घटि में घटि, मूंखे लॻे थो घटि में घटि साल 1.5 साल ॿियो बि लॻी वेंदो नॉर्मल थियण। अच्छा, आपने शादियों की बात करी तो मेरा ये सवाल हर बड़े सिंधी से, हर आइकॉनिक सिंधी से ये होता है कि सिंधी समाज में एक होड़ लगी रहती है कि मेरे बच्चे की शादी में मैंने 2 करोड़ खर्चे हैं तो उसने 2 करोड़ खर्चे हैं तो मैं 3 करोड़ खर्चूं। आपको नहीं लगता पोस्ट कोविड एरा जो है, ये जो अब जो समय आएगा, इसमें थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल करना जरूरी है? नितिन भैया, 6 महीना पहिरियों, 6 months before my younger daughter got married, मैं आज उसी के घर में बैठ कर Congratulations. वो 6 महीने पहले मेरी डॉटर ने मेरे साथ कंडीशन रखी थी कि पापा मैं शादी करूंगी एक ही बात पे कि बड़ी बेटी की शादी आपने बड़ी धूमधाम से की, 5-10 हजार लोगों को बुलाया, लेकिन मेरी शादी के अंदर जो मैं लिस्ट दूंगी आपको उनको ही बुलाना है। नितिन भैया मालूम है किसको बुलाया? खाली 100 लोगों को। और 100 लोग कौन? जो हमारे घर की सफाई करते हैं, काम वाली बाइयां हैं, ड्राइवर्स हैं, वॉचमैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, बूट पॉलिश वाले हैं, वो लोगों को और उनके घर वालों को बुला करके उनके साथ में खाना पीना किया उसने, और किसी के साथ नहीं किया। अॼु असांखे ख़बर पई थी न, घर में माई ना आई आहे, कमकड़ वारो ना आयो आहे, वॉचमैन हेठि कान्हे को, केतिरी तकलीफ़ थी थिए पई। ये असांजा ॿार असांखे सेखारनि था पिया। Our kids are trying to teach us these things. We learn from them. I learn from my daughter that spending so much money for the big functions and all, give the 100 people, those people, अॼु ड्राइवर जे बिना असां ॿाहिरि नथा वञूं। घर में कमारी माई त सॼे ॾींहं जा प्रोग्राम किटी पार्टियूं कैंसिल आहिनि। इन्हनि खे लव प्यार अफेक्शन मोहबत ॾियूं था न, साईं इहे ई वञी करे ॿाहिरि वञी तव्हांजी तारीफ़ कंदव, तव्हांजी इज़त ठाहींदव, ऐं इन जे बिना असां नथा अची सघूं। They are basically our brand ambassadors. Of course. Okay. दादा, आप अपनी निजी लाइफ में क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं जब से ये कोविड का ये सारा शुरू हुआ है? सर, मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडसन के साथ बच्चा बनने की कोशिश करता हूँ, मेरे बड़े भाई बहनों के साथ में बुजुर्ग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये है कि अच्छा खाना पीना, सोना, पॉजिटिव सोचना, लोगों से बातचीत करते रहना, अपना नेटवर्किंग बढ़ाना, फोन के ऊपर जितने काम कर सकते हो वैसे काम करते रहिए, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज दिन भर में, योगा वगैरह, वो मैं रेगुलरली करता रहता हूँ। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस VSS, आप कुछ निजी स्तर पर भी आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? नॉट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, बट किसी भी तरीके से, क्योंकि आप इतने समाज से जुड़े हुए, इतनी मेंबरशिप है आपके पास, इतनी चीजों से आप जुड़े हुए हैं, इतनी जगहों से आप जुड़े हैं,
तो कुछ निजी स्तर पे, चाहे वो कंसल्टेंसी हो या किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निजी स्तर पे? हाँ नहीं बोलते हैं नितिन भैया, चाहे वो लायंस क्लब की तरफ से हो, चाहे विश्व सिद्धि सेवा संगम की तरफ से हो, कहीं ब्लड देना हो, कहीं डोनेशन देना हो, कहीं अनाजदान देना हो, हम किस काम में कहीं पीछे नहीं रहते। अगर हम नहीं दे सकते तो किसी के थ्रू करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं। जो हमारे लिमिट के बाहर है हम वो बाहर से करवाते हैं, लेकिन ये काम रुकेगा नहीं। जब तक कम से कम मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं रुकेगा। ये कोरोना में नहीं, कोरोना के बाद भी कभी भी जहां जरूरत पड़ेगी, VSS लायंस क्लब हम दोनों साथ में हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्लीज। अपार्ट फ्रॉम सिंधी समाज, लेट्स टॉक लाइक एन इंडियन। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड के लिए भी संदेश हो और पोस्ट कोरोना एरा के लिए भी हो। सर, हम छोटे थे तो बड़ों से एक ही बात सुनी थी कि इंसान अपने लिए जीता है, शायद जानवर अपने लिए जीता है। अगर आपको अपने लिए जीना है तो आपको अपने आंख कान खोल के रखना है कि आपके आसपास अगर कोई भूखा सो रहा हो तो उसको भूखा मत सोने देना। अगर कहीं ना कहीं कुछ खाना या कुछ भी अगर आप दे, हमें थोड़ा कम जाएगा, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम 3 बार की जगह 2 बार खाना खा सकते हैं। लेकिन आपके पास में रहने वाला अगर कोई गरीब है, गरीब न भी हो, आज मीडियम क्लास की फैमिलीज को भी कैश की तंगी के कारण पता चलता है, शर्म के मारे आके हमको बोलता नहीं है, लेकिन रात को शायद भूखा सो जाता है। अपने आंख और कान खुले रखें, आसपास में नजर रखें। अगर किसी को आपकी जरूरत है, अगर वहां आप काम आते हो तो विश्वास कीजिए, कोई आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, ऊपर वाला जरूर देख रहा है, एंड ही विल गिव टू यू लॉट ऑफ थिंग्स। प्लीज टेक अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम पीपल हु रियली नीड इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जरा आपका ये इंटरव्यू हमारी संस्था इंडस सिंधी ऑर्गेनाइजेशन की एक इनिशिएटिव था, जिसमें हम आइकॉनिक सिंधीज का इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको कुछ कहना है ये जो इंटरव्यू सीरीज हमने चलाई है इसके बारे में? नितिन भैया, मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि मतलब इस वक्त में आपने उन सिंधी भाइयों को जमा करके और उनकी जो अच्छी और बुरी बातें लेकर के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आप उन पुलिस वालों में और सफाई कर्मियों के सिपाही की उस रो में आते जहां आप इस देश की सेवा कर रहे हैं आज की तारीख में। अगर मुझे मौका मिला नितिन भैया, तो मैं लॉकडाउन के बाद कभी भी हमारे किसी कन्वेंशन में आप जैसे सिपाहियों को ऑनर करना चाहेंगे। आप निस्वार्थ होकर। थैंक यू सो मच सर, माय थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच थैंक यू। तो ये थे लॉयन डॉक्टर राजू मनवानी जी हमारे साथ। आज इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। अब आप भी अपने कमेंट्स भेज कर मुझे बता दीजिए कि आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, इनके विचार कैसे लगे। थैंक यू राजू जी फॉर टेकिंग टाइम आउट। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे समय दे दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं, मुझे पता है। थैंक यू सो मच एंड सो स्वीट ऑफ यू। सर, आज की तारीख में तो सब लोग बहुत फ्री हैं, जितना वक्त चाहिए ले लिए। विश यू ऑल द बेस्ट नितिन भैया, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू जय झूलेलाल।